Good morning, students. How are you? I hope that you all are very fine. So, students, we were reading addition and subtraction of decimal, and that part has already been done. The next is multiplication of decimals. So, students, in order to understand the multiplication of decimals, we have to categorize when the multiplication is done by 10, 100, or 1000, and when the multiplication is done by any whole number. Clear? Because both the cases are different. Like when you are multiplying the given decimal with a number that has 10, that has zeros in it, such as 10, 100, 1000, 10,000. So in such cases the rule of multiplication is different. Okay, but when you are supposed to multiply a decimal with the whole number, then in this case the rule of multiplication is something else. So that's why in this book there are two different kinds of categories have been categorized. Okay, similarly, if you see, there can be a case, of course, that when there is a multiplication of a decimal by a decimal. For example, there is 1.2, and 1.2 should be multiplied by zero point 0.5. So in such cases you should know how to get the answers. Okay, you should know how to get the answers. Now the next is just examples. So I'm going to start right now. So students, what you have to do, whenever there is a multiplication of decimals by 10, 100, 1000, okay, then what you have to do, you just have to shift the decimal places by as number as there are zeros. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी डेसिमल का मल्टीप्लाई करोगे 10 से या 100 से या 1000 से, यानी किसी ऐसे नंबर से जिसमें कि 1 लिखा हो और आगे सारे के सारे ज़ीरोज़ हों, तो उसका जो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसका सिर्फ इतना ही होगा कि आपको जितने ज़ीरोज़ हैं डेसिमल प्लेसेस को उतने राइट शिफ्ट कर देना है. ठीक है ना. जैसे कि जब हमने मल्टीप्लाई किया, रूल्स में देखना, ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाई 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस. क्यों 1 प्लेस? क्योंकि जब 10 में एक ज़ीरो होता है, ठीक है, इसी वजह से 1 प्लेस किया गया. On multiplying a decimal by 100, the decimal point is shifted to the right by 2 places because 100 has got 2 zeros, so therefore 2 places. On multiplying a decimal by 1000, the decimal point is shifted to the right by 3 places, and so on. So similarly, find the product of 67.24 into 10. Clear? So 67.24 into 10, here you have got 10. Okay, here you have got 10. So that's why the decimal places will be shifted by 1 place towards the right. ठीक है, तो ये जो 67.24 है बच्चों, वो क्या बन जाएगा, 672.4 बन जाएगा. क्या बन जाएगा, 672.4. क्लियर हो रहा है ना. ऐसे केसेस में 67.24 को क्या कर देंगे, 672.4 कर देंगे. सिमिलरली 4.956 का मल्टीप्लाई जब हमने किया 100 से, तो ये डेसिमल 4 पॉइंट है, पॉइंट जो है, जो डेसिमल लगा है वो 4 के बाद लगा है, वो अब 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा. यानी क्या हो जाएगा, 5 के बाद लग जाएगा. इट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स आफ्टर 5. सो 495.6. ठीक है. एंड सिमिलरली you have 2.3748 into 1000. Here the number of zeros in 1000 is 3. इसी वजह से जो डेसिमल है वो राइट प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस तक देखो शिफ्ट होगा. यहाँ देखो दिखा है ना, 3 प्लेसेस तक. ठीक है. सो जब हमने 3 प्लेसेस तक शिफ्ट कराना है तो कहाँ पहुँचेगा, 4 के बाद पहुँचेगा. सो आंसर आ जाएगा 2374.8. ठीक है. सिमिलरली 35.6 बाई 1000 है, तो 35.6 बाई 1000 का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करना है कि 35.6
इंटू 1000 का सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा, 3 प्लेसेस तक ज़ीरो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो इसको कि अगर आपके सामने नंबर लिखा है 35.6 और मैंने कहा आप इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपने कहा कि सर इसको तो जब 10 से करेंगे तो 356 हो जाएगा, 100 से करेंगे तो एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे, बस ऐसे समझो। ठीक है ना, 35.6 इंटू क्या है, अगर 100 है, 1000 है, देन क्या करेंगे हम लोग 356 लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद डेसिमल के बाद कितने कितने प्लेसेस तक जाएगा, शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 तो 3 प्लेसेस तक शिफ्ट होगा ना, क्यों बच्चों 3 प्लेसेस तक शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने 3 प्लेसेस तक शिफ्ट करके इसको 00 और बढ़ा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिमिलरली the multiplication of a decimal by a whole number. When a decimal is multiplied by a whole number, we should know these two steps. First step, multiply the decimal without the decimal point by the given whole number. Step 2, mark the decimal point in the product to have as many places of decimal as are there in the given decimals. Listen. For example, the case is 5.43 should be multiplied by 15. This is the case. Okay. So what I want that the case should be this way. Clear? The case should be this way. अब इसमें क्या करना है, देखो जो मेथड में समझाया गया कि इफ़ यू सी द केस लाइक दिस, व्हाट यू हैव टू डू, you just have to do the multiplication part in a separate way. How? देखो कैसे, 5 we have to remove the decimal point first of all. हमने decimal point को remove कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 कैरी 1 वो 21 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, एंड ये एज इट इज़ आपका आ जाएगा 5 4 और 3। ठीक है, तो 5 4 1 8। क्लियर? उसके बाद जैसे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, जैसे आपने मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन बेसिकली किसके में था, 5.43 और किस में था, 15 में था, जिसका मल्टीप्लिकेशन जो हमने निकाला हुआ है 8145। उसके बाद जो डेसिमल देखो कितने प्लेसेस तक डेसिमल है, यहाँ पे 2 प्लेसेस तक डेसिमल है, तो 2 प्लेसेस का डेसिमल यहाँ पे हमने लगा दिया। ये ध्यान देना, यहाँ पे 2 प्लेसेस का डेसिमल अभी हमने आपके सामने लगा दिया। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो, यही मेथड होता है बच्चों। ठीक है ना, देखो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। 543 का सिंपली मल्टीप्लाई किया गया 15 से, तो आया 8145, और उसके बाद 8145 के बाद 81.45 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेसेस का डेसिमल था। यहाँ देखो लिखा भी 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सिमिलरली 327 इंटू 12 है इज इक्वल टू 3924 है। 327 इंटू 12 है इज इक्वल टू 3924 है। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन से है, जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 0.327 दिया हुआ है, 0.327 दिया हुआ है, यानी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, तो ये राइट जो भी आंसर आया वो हमारा राइट तक शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी हमारा आंसर आया वो राइट तक शिफ्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है। तो हमने 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए 1 2 3 आ गया ना। फिर से देखो, जैसे यहाँ पे 3924 है और हमें 3 प्लेसेस बैक जाना है। 1, अगर 1 प्लेस जाते तो यहाँ आता, 2 प्लेस जाते तो यहाँ पे आता 9 2 के बीच में, 3 प्लेस जा रहे हैं तो कहाँ पे आएगा, 3.924 के बीच में आएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है। सिमिलरली 65
इंटू 9 है, बेसिकली जो नंबर है वो क्या है 0.065 इंटू 9। तो हमने क्या किया 65 इंटू 9 निकाला जो कि है 585। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि ये 3 प्लेसेस और डेसिमल है तो इसी वजह से हमने 3 प्लेसेस और डेसिमल बैक आ गए। ठीक है ना, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हम लोग यहाँ पर रिवर्स आ गए। रिवर्स आने के बाद क्या आंसर आ रहा है 0.585 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल, डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। स्टेप 1, मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स। क्लियर। स्टेप 2, mark the decimal point in the product in such a way that the number of decimal places in the product is equal to the sum of the decimal places in the given decimals। पहला स्टेप ये है कि आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, अभी इस एग्जांपल को भूल जाओ, मैं आपको एक अनदर एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि एग्जांपल है 1.5 इंटू 0.7। ठीक है, 1.5 इंटू 0.7। तो पहला जो स्टेप है वो ये कह रहा है कि आपको डेसिमल पॉइंट के बिना एज अ होल नंबर इनका मल्टीप्लाई करना है। सो अगर ये डेसिमल पॉइंट के बिना एज अ होल नंबर है तो ये क्या है 15 इंटू 7 है। बोलिए। अच्छा, 15 इंटू 7 क्या होता है, आपको उसकी टेबल भी याद होगी। 15 इंटू 7 होता है 105। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ज़रा आप देखिएगा स्टेप 2 क्या कह रहा है। अब ज़रा आप देखिएगा स्टेप 2 क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप 2 कह रहा है मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट, जो फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स, इन द गिवन डेसिमल्स, इन द गिवन डेसिमल्स। ठीक है, सो गिवन डेसिमल्स में जो भी डेसिमल प्लेसेस हैं उनको ऐड कर देना है, सम कर देना है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है इस केस में, 1.5 के केस में 1 डेसिमल प्लेस है। 0.7 के केस में कितना डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है। तो 1 + 1 यानी कितना प्लेसेस आना चाहिए, 2 प्लेसेस तक आना चाहिए, 2 प्लेसेस तक आना चाहिए। इसी वजह से जो हमारा आंसर 105 आया था, तो 2 प्लेसेस जाके 1.05 कर देंगे। और सेम देखो प्रोसीजर इसमें यूज़ किया गया है, क्या है 73.68 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 5.4 से। ठीक है, अब जो इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है, पहले हमने इसको एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट एज अ होल नंबर, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है 397872। क्लियर। अब इसके बाद आप ज़रा सा ध्यान से देखोगे कि सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल, पहले वाले में 2 प्लेसेस तक डेसिमल है 73.68 में, दूसरे वाले में 5.4 में 1 प्लेसेस तक डेसिमल है। तो ओवरऑल पहले में 2 है, दूसरे में 1 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होना आवश्यक है, ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से देखो 73.68 इंटू 5.4 का जब मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया 397.872। क्या आ गया 397.872। क्यों 872? क्योंकि 3 प्लेसेस और डेसिमल हमें जाना था, डेसिमल प्लेसेस तक लगाना था, इसलिए हमने 3 प्लेसेस और डेसिमल तक इसको हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दिया आपने, बोलिए। अभी जब हम लोगों का मल्टीप्लाई हो रहा था 10 से, तो हमने क्या करना था, शिफ्ट करना था। जब होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था तो डेसिमल प्लेसेस राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये ध्यान देना, ये हमेशा ध्यान देना। डेसिमल प्लेसेस की जो काउंटिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने के कगार पे, तो आपको इतना तो आ ही चुका होगा अब तक। ठीक है ना, तो 3 प्लेसेस ऑफ लेफ्ट जाना है तो यूँ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 0.089 बाई 0.76। पहले सिंपली मल्टीप्लाई करना है 89.76, 89 का 76 से,
और 89 का 76 से जो मल्टीप्लाई किया हमने तो आंसर आया 6764। क्या आंसर आया? 6764 आंसर आया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस गिनना है। तो यहाँ देखो 3 प्लेसेस डेसिमल का है और यहाँ पे 2 प्लेसेस डेसिमल का है, दोनों ऐड करके कितना हो गया? 5 प्लेसेस डेसिमल। देखो यहाँ लिखा भी है 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो चुका है, सो दैट इज़ वाई हम लोगों को उसको डेसिमल के 5 प्लेसेस तक बैक जाना है। तो 1 पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस और एक और ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, तो ये 5 प्लेसेस तक बनेगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? चलो ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है। आप लोगों को ये तो आता होगा ना बच्चों कि जैसे अगर एक नंबर है 6764, इसके आगे हम जितने भी ज़ीरो लगा दें, क्या नंबर चेंज हो जाएगा? नंबर नहीं चेंज होगा ना, ये चीज़ मालूम है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हमको 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए, तो प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4, प्लेस 5, यानी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे डेसिमल आ जाएगा? ज़ीरो के जस्ट पहले आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ आप और समझो कि अगर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल होता तो यहाँ पे लगता, ठीक। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होता तो कहाँ पे लगता? यहाँ लगता। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होता तो यहाँ पे लगता। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल होता तो कहाँ पे लगता? 6 के पहले लगता। बट क्योंकि 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इसलिए कहाँ लगा? ज़ीरो के जस्ट पहले लगा है। ठीक है, आई होप कि अब तक तो चीज़ें क्लियर आपको हो चुकी होंगी। ठीक है बच्चों, देखो सिमिलरली इसी प्रोसेस से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0235 का 0.327 से। डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, यहाँ पे कितना आया? 8 आया डेसिमल प्लेसेस। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा? 76845। तो क्योंकि 76845 है तो हमने क्या किया कि पहले 76845 के पहले खूब सारा ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, अब जब हम लोग डेसिमल गिनते हैं 8 प्लेसेस तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। कहाँ पे डेसिमल आएगा? यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। और ये मैं हटा देता हूँ। देखो हमारा फाइनल आंसर क्या यही आ रहा है? 0.00076845। ये देखो जो मैंने आंसर निकाला वो भी सेम है पॉइंट, ये एक ज़ीरो तो फालतू का, इसको हटा दो। ठीक है, 0.00076845 क्लियर हो गया? चलो ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.47 इंटू 5.3 इंटू 0.06। सिमिलर प्रोसीजर है, दो बार मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, पहले 47 और 53 का मल्टीप्लाई किए, फिर जो भी आंसर आया वो आंसर क्या आया? 2491 आया। फिर 2491 का मल्टीप्लाई किससे किए? 6 से किए। और डेसिमल प्लेसेस फिर से हम लोग सबका ऐड कर देंगे। जैसे कि ये जो केस है 0.47 में कितना प्लेस है? 2 प्लेस है। 53 में कितना प्लेस है? 1 प्लेस है। कितना प्लेस है? 1 प्लेस तक है। ठीक है, और 0.06 में कितना प्लेस है? 2 प्लेस है। तो जब ऐड किए तो कितना हो गया? 2 + 1 + 2, यानी कि 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आ गया। देखो यहाँ लिखा है ना 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the cost of a pen is rupees 28.50, then find the cost of 48 such pens। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पेन का कॉस्ट कितना है? 28 एक पेन का कॉस्ट कितना है? 28.50। और कितने पेन का पता करना है? 48 पेन्स का पता करना है। 48 पेन्स का पता करना है। ठीक है, तो टेक इट दिस वे कि हमने एक पेन का प्राइस मालूम है 28.5 और 48 पेन्स का का फाइंड करना है। देन व्हाट डू? वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स विदाउट देयर डेसिमल्स। यानी हमने क्या करना है? 285 का
मल्टीप्लाई करना है किससे, 48 से, बिना उनके डेसिमल्स के साथ। लेट्स मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 8 ज़ा 64 और 4 68 कैरी 6, 8 2 ज़ा 16 और 6 22, 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 8 ज़ा 32 और 2 34 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा, 4 2 6 होगा, 2 1 3 होगा और ये 1 बन जाएगा। सो ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितना है, बताइए यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितना है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर डेसिमल प्लेसेस 28.50 में 2 प्लेसेस तक डेसिमल है, और यहीं पे देखो आप लोग बच्चों मिस्टेक कर दोगे। क्या मिस्टेक करोगे, क्या कहोगे सर डेसिमल के बाद तो 2 नंबर्स लिखे हुए तो 2 प्लेसेस तक होगा। बच्चों ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो, अब जितने भी 0 बढ़ा दो, क्या आप 0 बढ़ाते जाओगे और डेसिमल प्लेसेस ऐड करते जाओगे क्या, नहीं ना। क्योंकि मैटर ये करता है कि डेसिमल के बाद जो फाइनल नंबर क्या है अदर देन 0, वहीं तक डेसिमल प्लेसेस काउंट होता है। तो अदर देन ज़ीरो क्या है, बताइए ज़रा सा, अदर देन 0 क्या है। हम कहते हैं कि क्वेश्चन पहले क्या लिखा था, ये लिखा हुआ था, ठीक है, बट हमने तो इसको काउंट करना ही नहीं है डेसिमल प्लेसेस में 0 को, और इसे काउंट नहीं करना है। तो अब जो डेसिमल प्लेसेस है वो क्या है, जस्ट 1 है ना, जस्ट 1 है। इसीलिए हम लोग राइट से जब जाएंगे तो एक डेसिमल प्लेसेस पे यहाँ पे डॉट लगा देंगे। कहाँ पे, एक डेसिमल प्लेसेस पे डॉट लगा देंगे। और ऐसा करते हुए जो हमारा फाइनल आंसर आया, वो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, वो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1368.0। क्लियर हो गया। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। देखो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है ना। और फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1368, क्योंकि 0.0 तो कोई इफेक्ट नहीं करता है उसका। क्लियर हो गया ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9। The cost of 1 meter of ribbon is 35.80. What will be the cost of 9.8 meters of ribbon? 1 मीटर ऑफ रिबन का कॉस्ट है 35.80। 9.8 मीटर्स ऑफ रिबन का कॉस्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स 1 मीटर का हमें मालूम है 35.80। 9.8 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए डेसिमल प्लेसेस को काउंट करते हुए जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 350.84 आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर है द कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर ऑफ रिबन इज 350.84। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1 kg ऑफ मिल्क हैज़ 0.264 kg ऑफ फैट। ठीक है ना, 1 kg ऑफ मिल्क में 0.264 kg ऑफ फैट होता है। देन हाउ मच फैट इज़ देयर इन 12.5 kg ऑफ मिल्क। मैंने कहा कि भाई 1 kg में अगर 0.264 kg फैट है तो 12.5 kg में क्या होगा। तो आपने क्या करना है कि गिवन फैट का जो अमाउंट है 0.264, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है गिवन क्वांटिटी ऑफ मिल्क से। गिवन क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है, 12.5 kg। So the given quantity of milk is 12.5 kg and this quantity should be multiplied with the given amount of fat per kg. So the given amount of fat per kg is 0.264 and the situation is again the same. You have to multiply these two numbers considering them as a whole number, and after multiplying and getting the final result, what you will do, you will just add their decimal places and put it to the final product. Okay, and the same thing is done here. 264 is multiplied by 125 and the final answer that comes is 33,000, but the decimal places is like 3 places here and 1 place here, so the total number of decimal places is 4. The total number of decimal places are 4, and that is why we have to get back from right to left to 4 decimal places, and by doing so we'll get 3.3.
Clear? 3.3 kg. So here is the final answer, that the quantity of fat in 12.5 kg of milk is 3.3 kg. So now the students, now the point is कि इतना कुछ सीखने के बाद what your work. So please be very honest to me right now. ठीक है ना? प्लीज़ बहुत ही ऑनेस्टली आप बताना कि जो भी मैंने पढ़ाया, आफ्टर रीडिंग दैट, कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 1? केवल 10 10 10 का ही मल्टीप्लाई चल रहा है इसमें, केवल डेसिमल शिफ्ट करना है और आंसर छोड़ देना है, राइट प्लेस पे 1 प्लेस डेसिमल जाना है. सिमिलरली जो आपका ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट. आई होप कि आप ये भी कर ले जाओगे, देन आप 1000 वाला भी कर ले जाओगे, क्वेश्चन नंबर 3. फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करने के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इन सच केसेस. अब ये देखो कौन सा केस है, ये बच्चों टाइप 2 है. ये कौन सा है? ये टाइप 2 है, जो मैंने सिखाया था कि जब डेसिमल का मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, जब डेसिमल का मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, एक होल नंबर से हो रहा था. ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये स्टेप आपका सेकंड वाला एग्जाम्पल वाला ही पार्ट कवर किया है. ठीक है, तो आई होप कि आप ये भी फिनिश कर सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 5 भी फिनिश कर सकते हो बिल्कुल हैप्पीली. एग्जाम्पल नंबर 6 भी फिनिश कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, अगर आप मैं 7 और 8 की बात बताऊं तो बच्चों देखो 7 और 8 जो है मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही समझाया था, जब कि बच्चों देखो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, 1.2 स्क्वायर है, जैसे 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है ज़रा समझो मेरे साथ. ठीक है, और ज़रा स्टार्टिंग में आ जाते हैं. 1.2 का स्क्वायर, just a minute, 1.2 का square of 1.2. So here in such cases what you can do, okay, what you can do, you just have to multiply this 12, this 1.2 with this 1.2, that's it. यहाँ पे पावर 2 का मतलब ही होता है ये कि आपको इस गिवन नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. अगर यही 1.2 की पावर 3 होता तो क्या करते, इसका मतलब होगा कि जो गिवन नंबर 1.2 है इसका मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स करना है, इसका मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है. ठीक है, अब ये प्रोसीजर जो है मल्टीप्लाई करने का, ये तो मुझे सिखाना नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी यू नो. ठीक है, हाउ टू डू दिस, व्हेन यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ this 1.2 with this 1.2, what you will do, you will do it like this. ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 144. ठीक है, देन यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लिया आपने, कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो हमने 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल को इसको यहाँ पे फिट कर दिया. ठीक है, ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर. यही प्रोसीजर होता है, यही प्रोसीजर स्क्वायर के केस में भी है जब आपका 1.2 का स्क्वायर दिया होगा, और यही प्रोसीजर तब भी है जब आपका क्वेश्चन में लेट्स से कि 3.5 का क्यूब दिया होगा, तो भी सेम प्रोसीजर है. डेसिमल पहले मल्टीप्लाई करेंगे एज अ होल नंबर, उसके बाद उसका डेसिमल प्लेसेस फिट कर देंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई बिलीव कि आप क्वेश्चन नंबर 8 तक तो बहुत हैप्पीली कर सकते हो. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 के बारे में थोड़ा सा बता दूं. अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर. हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स. अब 1 किलोमीटर में मान लो 62.5 किलोमीटर जाते हो, 1 आवर में, सॉरी, अगर आप 1 आवर में 62.5 किलोमीटर्स जा रहे हो, यानी आप अपने घर से निकले, लेट्स से कि आपको कहीं जाना है और आप अपने फादर के साथ उनके बाइक से निकले या उनके 4 व्हीलर से या कार से निकले. ठीक है, एंड 1 आवर ट्रैवल कर चुके हो, लेट्स से कि आप अपने घर से निकले हो 9 AM पे, और अब वॉच में जो टाइम है वो 10 AM दिखा रहा है. सो आफ्टर ट्रैवलिंग 1 आवर आपको ये पता चला कि यू हैव कवर्ड 62.5 किलोमीटर्स. ठीक है,
after traveling for 1 hour, now you know that you have covered 62.5 kilometers. Now the point is कि अगर आप ऐसे ही 2 आवर्स तक चल जाओ तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे? तो आप कहोगे सर 62.5 किलोमीटर हमने गया था 1 आवर में, तो 2 आवर जाने के लिए ऐसे ही एक बार और जाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा, डेसिमल लगा देंगे, 125 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 125 आंसर आएगा। 125 किलोमीटर 2 आवर्स में। 3 आवर्स के लिए होता तो हमने क्या करना होता कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होता। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होता। उसी तरीके से जब यहाँ पे 18 के लिए पूछ रहा है, मैं इसको हटा ही देता हूँ सारा, ठीक है। जब यहाँ पे 18 के लिए पूछ रहा है, 18 आवर्स में, सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड सिंपली मल्टीप्लाई दिस 62.5 विद दिस 18 आवर्स एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। Similarly with question number 10, a tin of oil weighs 16.8 kg. What is the weight of 45 such tins? A bag of wheat weighs 97.8 kg. How much wheat is contained in 500 such bags? So ये जो सारे केसेस हैं ऑलमोस्ट ये मल्टीप्लाई के ही हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कुछ चेंजिंग होगी, सो आई लेट यू नो अबाउट द थिंग्स। अभी एज इफ नाउ आपका वर्क क्या है कि यू शुड अटेम्प्ट, आपको अपना पूरा बेस्ट देना है, बिकॉज हम लोगों को देखो नेक्स्ट क्लास में डेसिमल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में क्योंकि डेसिमल्स पढ़ना है इसलिए हम लोग को आज इसी क्लास में इसको फिनिश करना है मल्टीप्लिकेशन। सो आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है स्टूडेंट्स कि आपने ये सारा का सारा जो मैंने एक्सरसाइज अभी आपको बताया, एक्सरसाइज 3C से दिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये एग्जाम्पल्स करने की ज़रूरत नहीं है। दीज एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर बुक, और मोर ओवर यू हैव गॉट इनफ एक्सरसाइज इन योर बुक, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3C में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स के लिए मैं इस बार आपको फोकस नहीं करूँगा, प्रेशराइज नहीं करूँगा। आप एग्जाम्पल्स मत करो, आप क्या करो, केवल इनके जो क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज 3C में, इसको प्रॉपर फिनिश करो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस देन दिस 3 4, कि प्रॉपर का प्रॉपर एक्सरसाइज 3C, ये प्रॉपर का प्रॉपर एक्सरसाइज 3C आई वांट कि आप इसको फिनिश करो, ठीक है। और ये थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है, दिस वर्क इज़ क्वाइट मोर, ठीक है, क्वाइट ह्यूज, सो दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू अ टाइम, ठीक है। वो टाइम क्या है? आई वॉन्ट आस्क यू कि आप इसको आज टुडे सबमिट करो, ठीक है, बट आई गिव यू अ टाइम टिल सैटरडे। मैं आपको सैटरडे तक का टाइम देता हूँ, ठीक है। सैटरडे तक आप इस पूरे वर्क को फिनिश करके मेरे को सबमिट कर दोगे, तब मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दोगे, ठीक है ना। आई होप कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट।